So in this session we'll start with the solubility part. Last session we introduced this chapter and discussed the various concentration units. Next terminology is solubility. Now solubility का definition क्या है? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. Means each and every solvent has capacity. Means वो एक certain amount तक ही solute absorb कर सकता है in a solvent. So the solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. Let's take example कि मेरे पास 100 ml पानी है तो उसके अंदर में 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून कुछ भी करके ग्लूकोज नहीं डाल सकता हूँ. There is one limit. After that excess amount of solute means glucose always settle down on the lower bottom. तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे varieties of solution के बारे में. So it depends upon the nature of solute, solvent, temperature and pressure. अब ये चार चीज हमें यहाँ पे देखनी है. So first clear हो चुका है solubility क्या है. Solubility is nothing but a maximum amount of solute can dissolve in specific amount of solvent. So next we moved on to this solubility of solid in liquid. Solid in liquid के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है like dissolve like principle. Like dissolve like principle का मतलब क्या है कि polar dissolve polar, non-polar dissolve non-polar. It observed that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. In general, a solute dissolve in solvent if the intermolecular attractions are similar in the two or the general principle related of solubility is known as like dissolve like. Example discuss करते हैं like dissolve like. Let's take example glucose NaCl both are polar solute. So now polar solute only dissolve in polar solvent. Means glucose and NaCl easily soluble in water, ethanol or methanol, and these are non-polar solvent. This is non-polar solute. Means glucose and NaCl cannot dissolve in chloroform and carbon tetrachloride, and vice versa. This is naphthalene and anthracene. Naphthalene and anthracene are non-polar solute. They cannot dissolve in water and alcohol just because like dissolve like principle. लेमन डिस्कशन करें, बहुत ही सिंपल है. आप लोगों की भी दोस्ती आपके लेवल के फ्रेंड्स के साथ ही अच्छी रहेगी. लेवल का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फाइनेंशियल स्टेटस, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, IQ और सोचने का तरीका. मीन्स आपके लेवल के बच्चों के साथ ही आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा रहेगी. बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों से भी आप दूर भागोगे और थोड़े से डल बच्चों से भी आप दूर भागोगे. पढ़ाकू बच्चों से आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करोगे, यार जब भी सामने आएगा 2 नए डाउट पूछेगा और मेरे को तो रेगुलर नहीं आ रहा है. सो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है. पोलर का इंटरेक्शन पोलर के साथ ही फिजिबल रहेगा, वो कभी भी नॉन पोलर के साथ नहीं जाएगा. लाइकवाइज नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर ओनली, दे कैन नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल. सेकेंड जो मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी किस हिसाब से होती है, तो सॉल्युबिलिटी इस हिसाब से होती है. लेट्स टेक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. देयर इज वन बीकर हैविंग 100 ml ऑफ वाटर. अब उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लूकोज डालता हूँ. स्टर रियली वेरी वेल, ऑल द ग्लूकोज आर सॉल्युबल इन दिस एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन. अब इसी बीकर के अंदर मैं एक और टेबलस्पून, मींस टोटल क्या हो गए 2 टेबलस्पून, एक और टेबलस्पून ग्लूकोज डालता हूँ. तो क्या हो जाएगा, once again stir really very well, all the glucose particle are soluble and we get the solution of glucose. बट जैसे ही सेम बीकर के अंदर मैं एक और टेबलस्पून ग्लूकोज का डालता हूँ, दैट इज 3rd टेबलस्पून, तो all the particle are settled down on the bottom of the beaker. So here in case 3 phenomenon हुए. First phenomenon क्या था, this is called unsaturated solution. This is called unsaturated solution. Means more amount of solute can dissolve in this solvent.
दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्यूट पार्टिकल आर सोल्यूबल इन वाटर. एंड दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाई सुपर सैचुरेटेड? जितना चाहिए उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया हुआ है. तो वंस अगेन, फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड, मीन्स लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मीन्स सॉल्वेंट मोर पेनिट्रेट, मीन्स और ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है. लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज नोन एज सैचुरेटेड वन. और जितना चाहिए उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 different kinds of solution. A solution in which no more solute can dissolve at the same temperature and pressure is called saturated solution. Means और ज़्यादा solute cannot soluble in water. Here there is a dynamic equilibrium between dissolved solute and the undissolved solute. An unsaturated solution is the one which more solute can be dissolved in the same temperature. Means यहाँ पे solute कम है, solvent ज़्यादा है, that is entitled as unsaturated solution. और excess amount हो जाएगा, that is called supersaturated solution. So this is all about your saturated and unsaturated. तो ऊपर हमने पढ़ा solute and solvent का nature. अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में. टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? मैनी ए टाइम इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई सॉल्ट डाला, फिर सिंपल टैप वाटर डाला या फिर सिंपल डिस्टिल्ड वाटर डाला एंड शेक रियली वेरी वेल, तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है. अब सेम टेस्ट ट्यूब को बुंशन बर्नर पे अगर आप जो गर्म करोगे तो ऑल सॉल्यूट पार्टिकल आर सोल्यूबल इन वाटर. तो ये तो मिरेकल हो गया. कैसे हो गया? नॉर्मल सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट था, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट था, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्यूबल नहीं हो रहा था, बट व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर मींस बुंशन बर्नर पे हिट किया तो सॉल्यूबल हो गया. कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. और यू कैन से दैट सिंपल सॉल्यूशन जो डिसॉल्व हो रहा है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी अगर आप गर्म करोगे तो और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल कैन सॉल्यूबल. वो भी एक दूसरा पहलू है. मीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी जो अगर आप गर्म करोगे तो पिंच ऑफ मोर सॉल्यूट कैन पेनिट्रेट एंड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन. So the effect of temperature is all about the solubility of a solid in a liquid mainly depend on a temperature. Since the dissolution of a solid in a liquid is in an equilibrium process, it should be follow Le-Chatelier's principle. 11th standard हमने पढ़ा था. In general, if a nearly saturated solution, the dissolved process is endothermic and the solubility should increase with rise the temperature. If exothermic, the solubility should be decreases. So this is all about your effect of temperature. If you increase the temperature, rate of forward reaction takes place, Le-Chatelier's principle. If you decrease the temperature, rate of backward reactions takes place. Next is all about your effect of pressure. This is really very important. Since the solid and liquid are highly incompressible, pressure does not have any significant effect on the solubility of solid and liquid. तो इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर दैट इज हाईली अनकम्प्रेसिबल, तो ये तो पार्ट ही नहीं लेगा. बट पार्ट कब लेगा प्रेशर? जब गैस की बात करेंगे. तो यस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वेयर वी हैव टू यूज दिस प्रेशर टर्म. जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूँ बेस्ट एग्जाम्पल रोड साइड पे जो सोडा लॉरी होती है उसकी बात, सोडा सॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, सोडा की लॉरी होती है उसकी बात कर रहा हूँ. तो इमेजिन कीजिए वही सेम कि सोडा की लॉरी पे आप जाते हो, आप बोलते हो कि भैया एक सोडा बनाइए, तो वो कैसे बनाता है? सेम फिनोमिनन यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको. एक कांच की बोतल के अंदर हाफ ऑफ द बोतल वाटर लेगा, पुट इट इनटू वन सिलेंडर के नीचे से वो लॉक करेगा और ऊपर से अप्लाई सम प्रेशर से वो क्या डाल रहा है उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर इन केस सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है,
सोल्यूट गैस फॉर्म में है और वो भी प्रेशर से अप्लाई करता है। तो प्रेशर से जब भी गैस पेनिट्रेट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है या फिर इंट्रिम हो जाती है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर डालोगे तो भी जितनी क्वांटिटी डिसॉल्व होनी है उतनी ही होगी। आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं और उसका जब भी आप ओपन करोगे तो ऊपर से फिजिक्स निकलेगा, दैट इज नथिंग बट द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैनी ए टाइम हम वो 500 ml प्लास्टिक बॉटल को शेक रियली वेरी वेल और दोस्तों को दे देते यार प्लीज खोल के देना। अब जैसे आपने शेक करके रखा हुआ है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही बंदा ओपन करेगा प्रेशर से गैस निकल के बाहर आ जाएगा। So here in case we'll discuss the same point, the solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid is greatly affected by the pressure and temperature. The solubility of gas increases with increase the pressure. जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना solubility बढ़ेगा। A quantitative relationship between this pressure and solubility of a gas in a liquid was first time introduced by Henry. So that's why this law is known as Henry's law. Henry ने क्या statement दिया? The law states that at the constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Means pressure increases, solubility increases. कम प्रेशर दोगे तो थोड़ा कम क्वांटिटी में गैस डिसॉल्व होगा, अगर ज्यादा प्रेशर दोगे तो ज्यादा गैस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। So Dalton stated that the solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure also. 11th standard याद कीजिए, Dalton's partial pressure हमने पढ़ा था। If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measurement of the solubility, then we can state that the mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. So ये जो फर्स्ट लॉ था हेनरी का, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए डाल्टन ने सजेस्ट किया। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं दैट इज द फाइनल लॉ ऑफ हेनरीज लॉ। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेनरीज लॉ, तो आप सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखोगे ना कि फर्स्ट वाला। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in solution. Once again I repeat the statement, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. So this reaction basically P is proportional to this X. Pressure is directly proportional to this X. Mole fraction देखिए यहाँ पे P है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर कर रहा है? के ऊपर। नाउ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गॉन एंड यू गेट P इज इक्वल टू KH इनटू X। नाउ KH क्या है सर? तो KH इज नथिंग बट द हेनरीज कांस्टेंट। सो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू KH इनटू X। हियर KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। नाउ डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। That is, KH is a function of nature of the gas. Higher the value of KH in given pressure, lower is the solubility. ये टर्म याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव में पूछा जा चुका है। Higher the value of KH at given pressure भूल जाइए। Lower is the solubility. मीन्स आपको 3 या 4 गैस दिए होंगे जिसकी KH की वैल्यू दी होगी और पूछा होगा arrange this gas in increase or decreasing order of their solubility. तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा, higher the value of KH, lower the solubility. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्लियरली बता रहा है इट्स पास फ्रॉम ओरिजिन, मोल फ्रैक्शन इज टू प्रेशर का ग्राफ है, पास फ्रॉम ओरिजिन विच क्लियरली शोज दैट इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा आपको KH. As the temperature increases, the solubility of gas in a liquid decreases. It is due to the reason that the aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm waters. इसीलिए सरफेस के ऊपर आप देखोगे तो aquatic creature बहुत ही कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, but when you go down the temperature is decreases and due to this you get the more amount of aquatic creature.
So in today's session, we'll discuss a simple basic introduction to this what actually means by Henry's law. नेक्स्ट सेशन में हम उसकी एप्लीकेशन एज वेल एज लिमिटेशन भी पढ़ने वाले हैं. सो इन टुडेज सेशन विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ. स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न. थैंक यू.